Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we started our journey of sorting, okay, and searching. And in searching, we did the linear search and the binary search. We are done with it. Sorting, we did bubble sort, okay. And after bubble sort, what we did? That was the selection sort Selection sort. we did yesterday. And third brother of them is the insertion sort. They are more or less same algorithms, but only little difference. Bubble sort was purely for the teaching purposes. We never implement it and all, uh, because if we see the complexity, worst case complexity of all of them is big of n square. Even with the insertion sort is also big of n square. But in bubble sort, selection sort is a little better than the bubble sort, because in bubble sort we have to swap all the time. Okay, Mm. all of the three actually contains two arrays. One is the sorted array and the unsorted array, right? Unsorted. But in these two algorithms, the selection and insertion sort, you have the sorted array and you have the unsorted array. But in unsorted array, you get elements into the sorted array, right? In Mm. this case, you don't mess up with the sorted array. Whatever is getting sorted, that is final. Okay, that is final. You can't change it then. Fine. It is 7 is coming here, 5 is coming here. You don't have to change it. uh, Rest you work on the unsorted array, you work. But when something is sorted, is final. This one is final. But in our, for example, insertion sort, it is not final. In the selection sort, Mm. what we did, we selected, right? This is my sorted array, like 1 2. Then Mm. we select and we move on these guys. Then we swap the two, because whatever is sorted comes here. Okay, but in this case, Unsorted. in the case of insertion sort, we have a sorted array, which is still we can put things into. Say for example, the sorted array become like this: 1 2 4 8. Okay, now we have, for Mm. example, 3. The 3 will not come here in the will add to the sorted array. Rather, it has to be placed into its right position. That is between 2 Mm. and 4, which was not happening in bubble sort. In fact, also not in a selection sort. In selection sort, what we did? This is selection sort, right? What is it in the selection sort? Can Yes. you tell me? हम कैसे करते थे इसमें? हम first we see the first element. हम इसमें Hmm. इंडेक्स देखते हैं पहले, उसके Exactly. बाद पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको अपनी जगह पे पहले लाते हैं. हमने पहला मुझे समझाओ. पहली बार हमने क्या किया? इसको 5 और 7 को कंपेयर 7 किया को ना? 5 और कंपेयर 7 किया. को कंपेयर किया हमने. आई लूप चला 0 से और फिर जो जे इसमें से लूप चला छोटा आई था प्लस. वो हमने एक उसका इंडेक्स सेव किया. एग्जैक्टली, उसका इंडेक्स हम सेव कर रहे हैं. फिर ये मेरी सॉर्टेड बन गई. अ, उसके बाद 1 2 हाँ सॉर्टेड बन गई. यहाँ पे 1 और 2 सॉर्टेड बन गए ना. यहाँ पे 1 और 2, हाँ 4 7 5. अब 1 2 ये फाइनल है ना मेरा. ये तो फाइनल है, ठीक है. हाँ. अगेन अब मैं इसमें देखूंगा कि 2 के बाद कौन मेरा सबसे छोटा है. ओके, बिकॉज टाइम जा रहा है मुझे कंपैरिजन करने में. मुझको 2 को कंपेयर करना है इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, है ना. हाँ. जैसे यहाँ पे 7 था, 7 को मैंने कंपेयर किया 4 के साथ भी, 2 के साथ भी, 5 के साथ भी. अब जो सबसे छोटा था उसका इंडेक्स मैंने स्टोर कर दिया. फिर मैंने लास्ट में एक स्वैप कर दिया, दैट इज 2 एंड 7 को मैंने स्वैप कर दिया. 2 यहाँ पे गया, 7 यहाँ पे गया. लेकिन जो ये वाली एरे यहाँ से जो बन रही है मुझे, ये सॉर्टेड एरे बन रही है फाइनल वाली. क्या बन रही है? फाइनल वाली बन रही है ना. सॉर्टेड एरे फाइनल वाली बन रही है. लेकिन जो इसमें और बबल सॉर्ट में ये हमें फायदा आया कि बबल सॉर्ट हमेशा स्वैप करता करता था. इट स्वैप्स ऑल द टाइम. इट हैज टू स्वैप एंड गेट द इसमें ऐसा लास्ट. नहीं कर रहे हैं. हाँ, इसमें खाली इंडेक्स को हमने याद रखा और लास्ट में एक स्वैप हो गया. लेकिन कंपैरिजंस जो हम कर रहे हैं वो टोटल से आप एग्जैक्ट कंपैरिजंस, लेकिन फिर भी लग रहे हैं. कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, हाँ. ये मुझे कंपेयर करना है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, सो ऑन मैं कर रहा हूँ. लेकिन स्वैपिंग नहीं कर रहा हूँ. ये स्टेप्स जो स्वैप के 3 स्टेप्स हैं वो मुझे बेनिफिट आ रहे हैं. ठीक है ना, एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट. लेकिन अब जो इंसर्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट इज व्हाट वी डू इन अवर रियल लाइफ. इंसर्शन सॉर्ट है कि जो हम रियल लाइफ में करते हैं. यहाँ मान लीजिए मेरे पास
ये कार्ड्स है, ठीक है, मुझे इनको सॉर्ट करना है। आई हैव टू सॉर्ट देम। डू आई हैव पेन? यस आई हैव। Say for example, this is the 1, this one is 2, this one is 3, already written there 3, there is 4. अब मुझे ये सॉर्ट करना, मुझे मान लीजिए 4 3 ऐसे ऐसे ये है, ठीक है ना, मेरे पास ऐसे है कि मैं इसको आपकी तरफ रखूंगा, कैमरा की तरफ, ठीक है, ये कार्ड्स है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। इंसर्शन सॉर्ट काम करता है जिससे हम काम करेंगे, जैसे मैं देखूंगा भाई ये 4 है, ठीक है, यहां से मैं सॉर्ट करता जाऊंगा। अब उसके बाद मैं देख रहा हूं भाई ये 1 है, तो 1 जो मुझे आ रहा है, जो 1 आ रहा है वो 4 से पहले आना चाहिए, है ना। सो पहले। फिलहाल हाँ। मैं इसमें क्या कहूंगा, फिलहाल मेरी जो पहला एलिमेंट है दैट इज 4, मैं कहूंगा भाई साहब ये सॉर्टेड है। 4 जो पहला एलिमेंट है मैं ये सॉर्ट करके रखूंगा। उसके बाद जो मैं एलिमेंट में मिल रहा है मुझे 1, मुझे क्या मैं कर रहा हूँ, 1 जो है वो 4 से बाद में आना चाहिए, पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। सो आई पुट 1, उसके बाद 4 रखूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेरी एरे बन गई, ये जो बाकी एलिमेंट्स है ये अनसॉर्टेड है, और ये जो मेरी पास अभी एरे बन रही है ये सॉर्टेड बन रही है, ठीक है ना। लेकिन ये सॉर्टेड फाइनल नहीं है, ये सॉर्टेड एरे फाइनल नहीं है, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज 3, इट इज व्हाट 3, 3 मुझे इस 1 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंसर्शन सॉर्ट। ये 3 मुझे इस 1 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है ना, ऐसे आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट लाइक दिस इन बिटवीन। सो हाउ आई डू दैट, आई विल कंपेयर दिस 3 विद 4। क्या भाई तू बड़ा है नहीं 4 बड़ा है, तो आगे चल। उसके बाद मैं 3 करूंगा कंपेयर इस 1 के साथ, भाई तू 1 बड़ा है 3 बड़ा है, नहीं नहीं 1 छोटा है, तो उसका मतलब है 3 इसके बीच में इस इधर लगेगा, ठीक है। तो मैंने 3 को इंसर्ट किया यहाँ पे बीच में। तो अब जो मेरी ये एरे है ये सॉर्टेड है फिलहाल, और जो बाकी एलिमेंट्स है मेरे पास वो है अनसॉर्टेड, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ एलिमेंट कौन है मेरे पास, 2, कौन सा ये दिख रहा है, इस पे 2 लिखा है, ओके दिस इज 2, अब मान लो 2 है, अगर दिख भी नहीं रहा तो 2 है। अब मैं 2 जब मैं देखूंगा मुझे इंसर्ट करना है ना प्रॉपर पोजीशन पे। सो जो मेरी ये सॉर्टेड एरे है ये फाइनल नहीं है, पहली बात ये है इस इंसर्शन सॉर्ट में, दिस इज नॉट फाइनल। व्हाई? बिकॉज जो मेरा एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे लास्ट में नहीं लगेगा। जो आपका बबल सॉर्ट था या आपका सिलेक्शन सॉर्ट था, उसमें जो फाइनल एरे बन रही थी वो फाइनल सॉर्ट बन रही थी, जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला था वो इधर लगता आगे, उसके बाद आगे 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 आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉर्ट था, और जो सॉर्टेड एरे बन रही थी वो फाइनल सॉर्ट बन रही थी, इसमें नहीं बनेगी, इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ये एलिमेंट मेरे पास है 2, तो मैं देखूंगा मेरे पास यहाँ पे कौन है 4, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, तो उसका मतलब है कि 4 के बाद 2 आएगा, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 3, 3 चूंकि बड़ा है 2 से, तो उसका मतलब है 2 3 के बाद आएगा, तो इधर मैं 3 को करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 है, अब 1 जो है वो छोटा है 2 से, यानी कि 2 इधर लगेगा, तो इसकी राइट पोजीशन 1 के बाद है। सो मेरे पास सॉर्ट हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जो मेरे ये एलिमेंट था 2, इसको मैंने प्लेस राइट पोजीशन पे किया ना, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज फर्स्टली इंसर्शन सॉर्ट। तो इस इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो एलिमेंट्स मेरे पास हैं वो सॉर्टेड एरे अनसॉर्टेड एरे वही करेगा जो बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट ने किया, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में वो फाइनल एरे नहीं बनेगी। ये बात समझ आ रही है? फर्ज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 5 4 1 2 3, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, मुझे सॉर्ट करना है इसको। आई गॉट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स फॉर अ व्हाइल, सो आई एम गेटिंग 5 एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। एंड व्हाट विल बी द लिमिट? 5. Definitely it has to be 5, and it will run from 0 1 2 3 and 4, ठीक है ना, समझ आ रहा है? मैंने पहले से आपको कहा इन तीनों एरे में हम एक हाफ ऑफ द एरे का कहते हैं ये सॉर्टेड है, और यहां से अनसॉर्टेड। सो जो पहला एलिमेंट है पहली बार मैं कहूंगा भाई साहब ये सॉर्टेड है, ये मेरी सॉर्टेड है, यानी कि मेरी जो दीवार लगने वाली है सॉर्ट वर्सेस अनसॉर्ट की, जो दीवार लगने वाली है वो यहां पे लगेगी पहली बार, यानी कि इधर वाली एरे सॉर्टेड है और इधर वाली एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है ना,
ओके, हम्म, अब मैं बात करूंगा जो अनसॉर्टेड एरे जो मेरी है उसका पहला एलिमेंट, व्हाट इज दैट? 4 4, बी विद मी, बिकॉज आपको मुझे कोड बताना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आपको मुझे बताना है। दिस इज 4, दिस इज, और लूप 4 मुझे चलानी है अंदर वाली, वो यहां से चलेगी, वो इधर को चलेगी, इधर साइड में जाएगी वो, ठीक है, टू द सॉर्टेड एरे, क्योंकि क्योंकि मुझे देखना है ना सॉर्टेड एरे के अंदर ये 2 किधर घुसेगा, है ना। जैसे मैंने हाँ अभी आपको कहा कि मैंने, मेरे पास जो एलिमेंट्स अभी आए थे लास्ट में, जो मैंने पेपर से आपको डेमो दिखाया, उसमें फर्ज में मेरे पास थे 1 3 4 5, अब मेरे पास यहाँ 2 था, ये वाली मेरी सॉर्टेड एरे थी, अब लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है 2, ठीक है। जब मैं इस पे काम करूंगा मुझे देखना ये 2 किधर पहुंचे, किधर, इसकी जगह कहाँ पे है, क्या 5 के ऊपर है, नहीं, क्या इसके ऊपर है, नहीं, क्या इधर है, नहीं, क्या इधर है, हाँ, तो आई हैव टू इंसर्ट इट हाँ हियर। इनफैक्ट यहाँ इंसर्ट के लिए जगह ही नहीं है, तो करूंगा क्या, पहले मैं ये 2 कहीं पे सेव करूंगा, मैं टेम्परेरी वेरिएबल में उसको मैं की नाम रखता हूँ, ठीक है। अब ये 5 मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, 4 यहाँ कॉपी करूंगा, 3 यहाँ कॉपी करूंगा, अब यहाँ बच गई ना जगह, और फिर जी ये 2 मैं अपनी जगह पे लगाऊंगा, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इंसर्ट करना है yes, एट इट्स राइट पोजीशन, जैसे कि आप पेपर्स आपके हाथ में है और आप इनको पेजेस को सॉर्ट कर रहे हो, करते हैं ना हम्म, हम कहते हैं कि you go 4, you go 18, जी you should 20, you go 18, you have 17, you have 18, जैसे एग्जामिनेशन में आप जाते हो, फिर जब हम पेपर्स पकड़ते हैं वहां हम सॉर्ट करते हैं अक्सर ऑन द बेस ऑफ रोल नंबर्स, ठीक है ना। तो yes, वहां तो स्टूडेंट मेरे को मत आते हैं ऐसे कि 1 2 के हिसाब से, कोई नहीं कभी 20th रोल नंबर आ गया, फिर 50th रोल नंबर आ गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 50 और 20 के बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद आ गया 19, जब मैं 19 देखता हूँ ओ यहाँ पे हो गया 20, इसकी जगह यहाँ पर है, यही है इंसर्शन सॉर्ट। अब इसको हम लॉजिक और प्रोग्राम लिखना है हमें, वो समझना है हमें कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे इसका। इंसर्शन सॉर्ट वही है वो जो हम रोज करते हैं, बात समझ आई। जी तो सर यहाँ पे जब मैं पकड़ूंगा इसको, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब जो पहला एलिमेंट है ये मेरा सॉर्टेड है, क्योंकि पहला है तो एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया सॉर्ट, हो गया सॉर्ट, यानी कि लूप में हम्म, चलाऊंगा कहां से, बाहर से, इस एलिमेंट से, ठीक है। तो जो मेरी बाहर वाली लूप है वो आई इज इक्वल टू 1 से चलेगी, कहां से चलेगी, आई इज इक्वल टू 1 1, यानी कि 1 1 से चलेगी, इंडेक्स 1 से चलेगी, जीरो से कोई चीज नहीं चलेगा, ना जे लूप ना आई लूप, क्योंकि जीरो जो है मैं मान चुका हूं ये सॉर्टेड है, क्योंकि अगर आपकी, अब फॉर एग्जाम्पल आपके एरे है, इसमें एक ही एलिमेंट है, वो तो सॉर्ट है ना। अगर yes, मेरी एरे कोई है, इसमें एक ही है 20, क्या ये अनसॉर्टेड है, ये हाँ तो सॉर्टेड है ना, क्योंकि इसको तो कंपैरिजन किसी के साथ है नहीं, बस आ रही है। हम्म, तो इसी तरीके से yes, ये जो एरे मेरी है, ये तो सिंगल एलिमेंट है फिलहाल, इसमें जो मेरी अनसॉर्टेड एरे वाली, सॉर्टेड एरे जो है उसमें 5 बैठा है, मैं मानता हूं ये सॉर्टेड है। अब मैं काम करूंगा 4 पे, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा मैं, आई का वैल्यू यहां लगेगा, हम्म, और मैं इस 4 को मुझे प्लेस करना है। ये फिलहाल 4 किस में है, सॉर्टेड एरे में है या अनसॉर्टेड एरे में है, अनसॉर्टेड ये अनसॉर्टेड में है, इसको कहाँ प्लेस करना है मुझे, सॉर्टेड में, सॉर्टेड सॉर्टेड में, और देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पे है, ये इसकी जगह किधर है, yes, ठीक है ना। हम्म, इसमें yes, दो सिनेरियोज मेरे को आ सकते हैं इसमें। फर्ज कीजिए ये 4 था इधर, है ना, और यहाँ पे मानो इसकी हम्म, जो एरे मेरे पास थी 5, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 2, और यहाँ पे था 1, ऐसा था कुछ, हम्म, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन आ सकती है, मेरे हम्म, पास ये 4 एलिमेंट मुझे प्लेस करना है इन सॉर्टेड एरे, ठीक है, लेकिन वहां पे है मेरे पास हम्म, 3 2 और 1, ऐसा है। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है ना कभी, ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ हम्म, सकती है। अब 4 rightly placed should be between 3 and 5, right? Here हम्म, 4 is actually where it is, है ना। जी सर यहाँ पे 4 इसको कहीं प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी राइट प्लेस पे, लेकिन नहीं एल्गोरिथम मेरा जो आता प्रोग्राम चलेगा वो सबके लिए चलेगा ना। तो इस हाँ सूरत में देखिए, इस सूरत में अगर आई का वैल्यू जो भी है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल आई का वैल्यू, इस जब हम पहली हम्म, बार चलाएंगे आई का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जब ये चलता जाएगा हाँ इसने किया है ना 1 2 3 5 को इसने अनसॉर्टेड से लगा के इधर लगाया है, अब हमारी सिचुएशन ऐसी बन चुकी हाँ है। उस सूरत में आई आगे गया होगा, उस पर तो 1 पे नहीं है, उस वक्त आई हमारा है 0 1 2 3 4 पे, ठीक है, अब ये 4 4 है। पे जी सर
अब 4 मुझे इंसर्ट करना है इस सॉर्टेड एरे में अपनी प्लेस पे, वो मैं कैसे करूंगा? मैं एक एक करके कंपेयर करूंगा। एक एक करके क्या करूंगा? पहले मैं इस हम 4 को किसी की वेरिएबल में, टेम्पररी वेरिएबल में डालूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं यहां से इसको कंपेयर करूंगा। भाई 4, क्या तू इससे छोटा है? अगर ये इससे छोटा है ना? किससे छोटा जी है? जी किससे छोटा है? 5 नहीं नहीं, आई से जो इधर है, आई से जो इधर है, और इधर जो ये आई है वो आउटर लूप है। काम कौन करेगा? इनर लूप, जे वाली लूप। इधर में। तो जे मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा? आप मुझे बता सकते हो? बिकॉज जो भी इनके ऊपर काम होगा इसके बाद, वो जे करेगा। यानी कि कंपेयर मुझे चाहिए 4 को 5 के साथ। दैट मीन्स जे मुझे लगाना है 5 के साथ। जे मुझे किसके साथ लगाना है? हाँ अगर आई 4 5 के इस, अगर आई इसके साथ है, इस वैल्यू 4 के साथ है, जे मुझे इस वैल्यू 5 के साथ लगाना है। तो दैट मीन्स जे लगना चाहिए जो भी आई का वैल्यू हुआ। जैसे फर्ज कीजिए यहाँ पे आई का उससे वैल्यू, इसका आई का वैल्यू ये है, व्हाट शुड बी जे? 4 -1। तो वट एवर द आई इज, इस सूरत में 4 है ना, इस सूरत में तो 1 है ना। हाँ I -1। आई माइनस वन, एब्सोल्युटली वेरी गुड। तो जो मेरी आउटर लूप है फॉर आई इज इक्वल टू 1 में लगाऊंगा फिलहाल। बाकी मैं इसको सोचूंगा, आई प्लस प्लस तो करना ही है, ये यहाँ पे कहाँ तक चलेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं लिखता हूँ आई लेस देन एन, फिर देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? लेकिन जो इनर जी लूप है जे की, वो चलेगी कहाँ से? आई माइनस वन। I -1 से। आई माइनस वन से चलेगा। अगर जे फोर, अगर आई 4 है तो जे 3 होना चाहिए। अगर आई 1 है तो जे हम्म 0 होना चाहिए, है ना? हाँ और इसको चेक करना जी पड़ेगा 4 को 5 के साथ, है ना? मान लो यहाँ पे हाँ 6 था और यहाँ पे 5 था। मान लीजिए यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 5 था, यानी कि 5। इसकी राइट पोजीशन थोड़ी आगे है। मान लीजिए यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 5 था। अब 4 की पोजीशन तो यहाँ है ना, 4 की राइट पोजीशन ये है। हम्म ओके, तो वो कैसे पता चलेगा हमें प्रोग्रामिंग से? मैं 4 को जो 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 वैल्यू आई का था, जे का मैंने पहले उसे -1 कर दिया, ठीक है? उसके बाद हाँ मैंने 4 को कंपेयर करना है 6 के साथ। 4 को किसके साथ हाँ करना है? अब मैं इस 4 को कैसे करूंगा? मैंने ठीक वो है की में रखा फिलहाल। किसमें रखा? की में। ठीक है मैं इस 6 को, यानी कि जो जे पॉइंट करता है, जिसको जे पॉइंट करता है, उसको करता कंपेयर है करूंगा इस की के साथ, क्या वो बड़ा है? ठीक है अगर वो, अगर वो बड़ा है, अगर 6 बड़ा है 4 से, तो मेरे को आगे जाना चाहिए, है ना? हम्म अगर इस सूरत में देखेंगे, जी जे इधर लगेगा, आई इधर लगेगा, क्या ए आर ऑफ जे, क्या ए आर ऑफ जे बड़ा है आई से, ए आर ऑफ आई से? हाँ नहीं है। इस सूरत में, सेकंड इस सूरत में, तो सेकंड सूरत, इसमें 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 है। मैं कह रहा हूँ क्या ए आर नहीं ऑफ जे, क्योंकि ए आर ऑफ जे इज 3, राइट? हम्म वैल्यू ए आर ऑफ आई इज 4, क्या ए आर ऑफ जे यानी कि 3 ठीक बड़ा है है 4 से? नहीं तो आगे जाना ही नहीं चाहिए। तो 4 की पोजीशन वही है, नहीं रुको वहीं पे, आगे मत हाँ जाओ, है ना? तो ये कंडीशन मुझे होनी चाहिए। ओके अगर मुझे आगे जाना है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं उससे बड़ा एलिमेंट यहाँ बैठा है, लेफ्ट में बैठा है। हम्म तो बात बनती है कि जो ये छोटा एलिमेंट है उसकी पोजीशन ये नहीं है, उसकी पोजीशन इधर से है ना? हम्म जी सर सॉर्टेड एरे में ऑलरेडी 20 आ गया और ये वाला नंबर 25 है। क्या ये इधर जाएगा? ये तो ठीक पोजीशन पे है ना? नहीं ये तो परफेक्ट है एग्जैक्टली exactly. अगर ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट की, वो छोटा है इस एलिमेंट से, तब जाके तो मुझे इधर जाना चाहिए ना। जी सर तो ये कंडीशन मुझे याद रखनी है कि भाई अगर ये जिस एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एलिमेंट की बात किसकी हो रही है? जो सॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे में पहला एलिमेंट जो है उसकी बात हो रही है। हम्म अगर वो सॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट से जो जे पॉइंट करता है, अगर वो उससे छोटा है, तो बात बनती है इसको मूव करना चाहिए। तो मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा फिलहाल? मैं यहाँ पे इसको 6 को इस 4 की जगह स्वैप करूंगा, ठीक है? आई विल पुट हम्म दिस 6 हियर एंड आई विल पुट दिस 4 हियर, ठीक है? कर दिया स्वैप। जी और जे वहीं रहेगा या जे आगे चलेगा?
पीछे चलेगा। पीछे चलेगा। सो दैट मीन्स मुझे जे को क्या करना चाहिए, माइनस माइनस। माइनस। जे प्लस प्लस नहीं जा रहा है, जे माइनस माइनस जा रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कभी जे जो है वो पूरा इधर जीरो पे आ जाएगा, वो भी रुकना चाहिए ना मेरे को। कभी हाँ। जे जो है वो इधर आ जाएगा ना, चला जाएगा, इधर चला जाएगा जीरो के पास, तो उस वक्त भी हमें स्टॉप करना चाहिए। तो मुझे दो कंडीशंस लगेंगे यहाँ पे। अगर मुझे इस 4 को आगे चलाना है, मेरे को दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, ये जो 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इससे लेफ्ट जो एलिमेंट है वो इससे छोटा होना चाहिए, तब बात बनती है कि ये आगे हाँ। जाएगा, वरना तो वो ठीक पोजीशन पे है, फिर तो करना ही नहीं है कुछ। और दूसरा, ऐसा ना हो कि जे 0 पहुंच चुका है, तो फिर किसके साथ कंपेयर करेगा, है ना? हाँ। फिर कंपैरिजन का कुछ जी। बचा नहीं। उस सूरत में भी मुझे नहीं करना है। तो दो कंडीशंस है, एक, जे का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो जे का जहाँ पे एयर ऑफ जे जो है, यानी कि वैल्यू ऑफ द इंडेक्स जे, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 है, हाँ। वो छोटा होना अगर वो चाहिए। छोटा है। हाँ, अगर वो छोटा है तब बात बनती है ना, कि है कि नहीं? तो जी सर। फिलहाल यहाँ पे जो है ये जे को माइनस माइनस होगा, अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, अब जे कहाँ जाएगा? फाइव पे। जे आएगा जनाब 5 के पास, ठीक है? और मैं कंपेयर जी। करूंगा फिर से इस 5 को किसके साथ? की के साथ, ठीक है सर। ठीक है? करूंगा ना? जी। मुझे हालांकि यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं स्वैप क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना, वो तो गलत हो जाएगा। वो तो हो गया फिर, अगर मैं बार बार स्वैप करूंगा वो तो फायदा ही नहीं है कुछ। यहाँ पे 4 रखने की, रखो वहां पे 6, सिर्फ इसमें 6 डालो। यानी कि अगर इसमें 4 था ना पहले, ये 6 इसमें डालो। देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने गलत किया, ये इंसर्शन सॉर्ट का नहीं है, मैंने खुद ही किया। अब देखिए, यहाँ पे आपका 6 था और यहाँ पे आपका 4 था पहली बार, और जे यहाँ पे था, ठीक है ना? मैंने देखा कि भाई साहब, क्या 4 जो की में मैंने डाला, क्या वो छोटा है 6 से? हाँ है। तो मुझे 6 इधर डालना चाहिए, इसको ओवरराइट करना चाहिए, क्योंकि 4 मेरे को ऑलरेडी सेव है ना इधर, इसमें डालने की जरूरत है नहीं। हाँ। क्योंकि अगर ये फिर से छोटा निकला तो ये फिर ओवरराइट होगा, तो मैं क्यों स्वैप करूंगा बार बार फजूल में? ठीक है? अब मेरा जे पहुंचा है यहाँ पे। अब मैं इस जे को कंपेयर करूंगा फिर से की से, क्या ये छोटा है? हाँ। हाँ, ये की वाला। छोटी है। की छोटी है, यानी कि जे वाला बंदा बड़ा है। तो अगर जे वाला बंदा बड़ा है, वो इस छोटे से लेफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो इसको मारो इधर, ये ओवरराइट हो जाएगा 6, इसको 5 के ऊपर। जे माइनस माइनस, अब जे यहाँ पर है, ठीक है? क्योंकि जे को माइनस माइनस हो रहा है ना। जे कहाँ पर है? अब 2 के पास। फिर से वही बात, क्या जो जे वाला बंदा है, क्या वो की से बड़ा है? नहीं है। नहीं। तो उसका मतलब है कि इसकी राइट पोजीशन आ गई, आ गई। है ना? अब मुझे कहाँ डालना चाहिए, की किधर डालना चाहिए? जहां पे जे था, क्या उधर डालना चाहिए या जे प्लस 1 पे डालना चाहिए? J+1 पे। जे प्लस 1 पे डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि 5 शिफ्ट हो चुका है। हाँ। अब ये जो प्लेस है, हाँ। इस प्लेस पे मुझे 4 डालना चाहिए। सो उसके ऊपर मैं डालूंगा आराम ओ। से। यानी कि ए आर ऑफ जे प्लस 1 में क्या डालूंगा मैं? की ओ। की जो भी की होगी, ठीक है ना? बस में आ रही है? अब जी। अगर यही सिचुएशन हम लगाएंगे इस वाली एरे के पर, अगर मैं यही सिचुएशन लगाऊंगा जो नीचे वाली एरे है, इस अगर मेरी सिनेरियो ये वाला ये है, ये दिस इज माय सिनेरियो। हम्म। यहाँ पे आई आ चुका है यहाँ पे, और जे इज i-1। जे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम i-1। हाँ। सो अगर i 4 है तो जे इस यहाँ पे आ जाएगा। क्या 4 कंडीशन क्या होगी? कि जे शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एयर ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन एयर ऑफ i। ग्रेटर। क्या? हाँ, क्या एयर ऑफ जे ग्रेटर है 3, ग्रेटर है 4 के? नहीं। कंडीशन फॉल्स। तो उसका मतलब है कि 4 की राइट पोजीशन वहीं पर है, आगे चलने की जरूरत नहीं है। नहीं। बात समझ आ रही है? अब हम ये पूरा एल्गोरिदम जी। कोशिश करेंगे इस पे लगाने की, अपने अब ऊपर वाले एरे पे लगाएंगे। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर फायदा ही नहीं है। प्रैक्टिस तो करना है, कोड तो करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है चीजों को। हाँ सर। फिलहाल बिगिनिंग के लिए जो मेरा आई है, दैट हैज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। आई टोल्ड यू इट हैड स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? 1। क्योंकि पहला एलिमेंट 1। जो है उसके ऊपर हम काम नहीं करते, हम बोलते पहला एलिमेंट सॉर्टेड ही है। वेयर विल बी जे? जे स्टार्ट्स फ्रॉम
I minus 1. I minus 1. Exactly. J starts from I minus 1. That is J will be 0. So that means J is equal to 0 और I मेरा कितना है 1. ठीक है ना? 1. बात में आ रही है? जी. और की में क्या डालूंगा मैं? What will I put key? AR of I. This will be happening. Okay. Key में डालूंगा मैं AR of Yes, I. sir. What will be in the key now? Tell me. 4. 4. First element which from the sorted array, unsorted array will be in a key. अब इस Yes. की को किसके साथ कंपेयर करना है जो J पॉइंट कर, है ना? जी होगा, हाँ. सो लूप क्या लगेगी? हम्म. while. यहाँ पे लूप लगेगी while J is greater than 0. एक तो J greater than 0 होना चाहिए और एम्परसेंड और AR of J should be J greater than what? की, ग्रेटर है ना? की, हाँ. तो देखते हैं क्या ये कंडीशन, देखते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है. हाँ है. देखिए AR of J, हाँ है. that is AR of 0. What is that? हाँ. 5. Is 5 greater than key, that is 4? Yes. True. Yes. Is J greater than 0? We could say greater than equal to 0, right? We have to use equal to 0, not only greater than. Is J greater than equal to 0? Yes, it is. Yes. So then this condition is true. That means 4 आगे जाना चाहिए, है ना? तो हम करेंगे क्या? इस 5 को यहाँ पे लगाएंगे, है ना? यानी कि AR of J plus 1 में AR of I में डालो. AR of J डालेंगे. AR of J plus 1 में AR of J plus 1 is this. इसमें आप AR of J यानी कि 5 डालो, ओवरराइट करो, उस 4 को ओवरराइट करो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 सेव है कहाँ पे? की में. हाँ, की में. अब J को क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कर रहे हैं ना, माइनस माइनस. हाँ. तो J what will be J equal to now? -1. J will go to -1, है ना? अब फिर से ये कंडीशन लूप चलाएगा ना, ये वाली लूप, ये इस लूप में है. अब ये लूप वापस चलेगी. अब ये लूप वापस चलेगी. इसका पहला ये कंडीशन फॉल्स है. J is not greater than equal to 0. J is less than equal to 0. It is less than 0 actually J. So it is false. ये करेगा ही नहीं. उसका मतलब है कि पहुंच गए हम अपनी जगह. उसका मतलब क्या है? जब इस while लूप के बाहर निकलेगा, मुझे AR of किस में डालना है? मुझे बताएगा कोई? J में डालना है की. J plus 1 में डालना है की. Because J is -1. Okay? -1 पे नहीं, इसका +1 करें, यहाँ पे 0 करें. That means AR of 0 पे मुझे डालना है, की में 4 है तो 4 यहाँ पे. तो आ गया ना परफेक्टली 4 5. आ गया? जब ये चीज आ गई, अब मेरी सॉर्टेड अरे किधर है? ये है सॉर्टेड अरे? नो, सॉर्टेड अरे का बॉर्डर किधर है? अब यहाँ पे बॉर्डर है. एंड 4 and 5 is the sorted. अब कौन है मेरे पास यहाँ पे? Now I will be plus, I will point to the 2. Now I is here. What will J start from? I minus 1. अगर I 2 है, so J will be 1. So J will start from here. एक कम, I से कम. So J will start from here, J will go this way, and I stays here at this position. और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठा है? 1. So where will this 1 go? This 1 will we stay put it into the key, है ना? Key is equal to AR of I. I चूंकि 2 है, तो की को उधर डालो, I में डालो. AR of I में जो AR of I है वो की में डालो. So की में गया 1. अब अंदर वाली लूप लगेगी for J is equal to I minus 1. I minus 1 यानी कि अगर I 2 है तो J will be where? At location 1, at index 1, pointing to this point. अब कंपैरिजन लगेगा, क्या J greater than 0 है? हाँ है. क्या AR of J is 5? क्या 5 greater than की है? हाँ है. तो क्या करो? AR of J plus 1 में, यानी कि J plus 1 उसमें AR of J डालो, यानी कि 5 उठेगा, हो जाएगा ये ओवरराइट. जाएगा ना ओवरराइट? हो गया. And J minus minus. Now J is pointing to this location, 0 location. फिर से ये लूप बोले, क्या J greater than equal to 0 है? हाँ है. ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल तो है. ठीक है. क्या AR of J, that is 4, is 4 greater than 1? की yes. फिर आगे शिफ्ट करो, AR of J plus 1 में AR of J डालो, यानी कि 4 इधर चला जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. J माइनस माइनस, J -1 पे चला गया. अब ये वाली लूप फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, और ये वाली चीज चलेगी. AR of J plus 1 में की डलेगी.
एयर ऑफ जे प्लस वन में क्या डालेगी, एयर ऑफ जे प्लस वन दैट इज दिस गाय, वहां पे की डालेगी दैट इज 1। अब मेरी जो एरे है 1 4 5 2 3 ये 5 ऐसा, सॉर्टेड है। फर्ज कीजिए यहाँ पे 6 था, 2 नहीं था 6 था, ये क्या था, ये 6 था। 6 ये इतनी मेरी सॉर्टेड एरे है, ये यहाँ की अनसॉर्टेड है ना। अनसॉर्टेड है। तो जो मेरी बाउंड्री है वो यस यहाँ पर है। I plus plus I will be pointing to the 3 now. I will point to what? 3. 3 Now I is at this location, pointing 3. So J जो इंटरसेक्शन। है I minus 1, यानी कि J इधर पॉइंट करेगा, I minus 1 इसको पॉइंट करेगा, है ना। हाँ और air of हाँ key में क्या जाएगा, air of I, that is air of I is this guy, that is 6. 6 6 will go into the key. Now in the key we have 6, है ना। जी अब सर। key में क्या है मेरे पास 6, जी समझ आ रहा है। यस सर। key में 6 है। अब फिर से देखूंगा मैं क्या, J जो है, J यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दिस इंडेक्स, ग्रेटर देन। इंडेक्स इज हाँ 0 1 2 एंड इट्स इंडेक्स इज 3। सो I 3 पे है, J 2 पे है, ठीक है ना। हाँ इंडेक्स इंडेक्स 2। हाँ तो क्या J ग्रेटर देन 0 है, हाँ है भाई साहब। क्या हाँ एयर है। ऑफ J, क्या एयर ऑफ J जे बड़ा की है, से बड़ा है। एयर ऑफ की से बड़ा है, नहीं। नहीं है। तो ये लूप चलेगी नहीं, ये बाहर निकलेगी और ये चीज होगा, एयर ऑफ J प्लस 1, J प्लस 1 इज द सेम व्हाट I इज पॉइंटिंग टू, उसमें की डालो, यानी कि 6 यहाँ पे ऑलरेडी 6 था, इसमें 6 डालेगा फिर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। हाँ और सॉर्टेड एरे बन जाएगी 1 4 5 6, ठीक है। और 3 विल बी इन द अनसॉर्टेड एरे। नाउ I will point to this and J will point one lesser than I, that is J point to this, right? अब फिर यस से सर। होगा, क्या J ग्रेटर देन 0 है, हाँ है भाई की में साहब। जाएगा 3। तो क्या एयर ऑफ J ग्रेटर देन की है, हाँ है, की में जाएगा 3, वेरी गुड। हाँ है। तो एयर ऑफ J ग्रेटर देन की है, हाँ है ना। सो फिर हाँ क्या करना चाहिए, यस। इसको यहाँ 6 को इधर लगाओ, ठीक है। J माइनस माइनस J विल हाँ पॉइंट टू 5। क्या 5 बड़ा है 3 से, हाँ है। तो चलाओ आगे, 5 हाँ को इधर चलाओ, ठीक है। J माइनस माइनस J विल पॉइंट टू हाँ 4। क्या 4 बड़ा है 3 से, हाँ है। तो 4 को इधर हाँ चलाओ, है। J माइनस माइनस J विल पॉइंट टू, अब J पॉइंट कर रहा है 1 की तरह। क्या 1 बड़ा है हाँ की से, नहीं है। तो रुको, नहीं। क्वेश्चन आ गई हमारी, क्योंकि 1 बड़ा नहीं है 3 से, तो रुक जाओ, तो ये वाइल लूप हाँ चलेगा नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो नहीं। गई, ठीक है ना। अब एयर ऑफ हाँ J प्लस 1, हाँ J प्लस 1 कौन है, ये वाला, उसमें क्या डालोगे आप, 4 यहाँ पे 4 5 6 आ गया, और की। यहाँ पर 1 और यहाँ पे ये हाँ 4 की। होगा, जो ना हम ओवर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ J 3 J पॉइंट कर रहा है इसको, एयर ऑफ J प्लस 1 में क्या डालेंगे हम, की, व्हाट इज की 3। 3 तो परफेक्ट आ गया 1 3 4 5 6, और ये सॉर्ट, इंसर्ट प्रॉपर हो गया, है ना। वेरी ये सॉरी। उठ के इंसर्ट हो गया इस लोकेशन, यस। वो जो मैं कॉर्ड्स में कर रहा था ना इंसर्ट, ठीक है। वी हैव गॉट ओनली जस्ट लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। आई विल ट्राई टू राइट द कोड प्रॉपरली नाउ। सो पहले हमारे पास क्या होगा, फॉर आई इक्वल्स टू, हाँ जी, 1, 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या हाँ देंगे, ये सॉर्टेड है, ठीक है। और कहां तक हाँ चलेंगे, आई इज लेस यस। देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। पहला काम मैं करूंगा, यहाँ पे की लेस के देन अंदर में क्या डालूंगा, एयर ऑफ आई, एयर ऑफ आई जो है वो की आई। में डालूंगा, ठीक है ना, ठीक है। यस अब जे कहां से चलेगा मुझे, अब जो, चूंकि मैं फॉर लूप नहीं आई कर रहा हूँ, प्लस वाइल 1 लूप से। करूंगा। मैं फॉर लूप भी कर सकता हूँ, वाइल लूप भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटर है वाइल लूप करना। अगर आप फॉर लूप करना चाहते हो वो भी चलेगा, यानी कि इसमें फॉर लूप करें, फिर फॉर जे इज इक्वल टू कहां से चलेगा, सर आई माइनस वाई 1, ठीक है। हाँ। वाई अच्छा नहीं 4 ठीक है इसमें। और जे इज इक्वल टू आई माइनस 1 से चलेगा ना, एक छोटा। हाँ एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड हाँ यहाँ दो कंडीशन लगेंगी, एंड जे, एयर ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन की, और जे को क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, नहीं। है ना। हाँ, आप इसको फिर से करेंगे, रिवाइज करेंगे फिर करना। अब क्या करेंगे, अगर ट्रू हो गया ये, तो एयर ऑफ J प्लस 1 में हम डाल रहे थे एयर ऑफ J, है ना। और, हाँ है ना, तो इतना ही करना है। जब इस लूप के हाँ बाहर आ जाएगा, क्लोज करेंगे। फिर हमारा पोजीशन आ गया, तो J प्लस 1 यार जो अब जी हमारा प्लस होगा 1 पे उसमें डालेंगे हम की डालेंगे, जी। एंड दैट्स इट, बस ना। इसकी जगह आप वाइल भी लिख सकते हो, इसकी जगह फॉर